Hi, good morning everyone. Today we will do exercise 7.3 of chapter 7, algebraic identities and factorization. In first two exercises we already done algebraic identities. Now our third exercise is for factorization. Actually, what is factorization? Factorization means if any algebraic expression you will represent as product of some algebraic expression, so that product we call it a factors. Okay, that factors we consider as our factors of algebraic expression. That is factorization of algebraic expression. Actually, when two or more algebraic expression are multiplied, they form another algebraic expression as a product. In other words, we can say that when algebraic expression written as a product of its factor is known as factorization. Factorization is said to be the reverse of the expansion. Whatever you done in your previous exercise, you have like a plus b whole square, a minus b whole square, and on the right side expansion will be there. Now what you have done, you have to do opposite to that. You have expansion is given, like this type of expansion is given, and you have to show in this the multiplication of the factors, multiplication of the two terms. Like here 24x plus 56. If I take 8 common, because 8 is 24 is divisible by 8 and 56 is also divisible by 8. So or I have given this expression 8 into 3x plus 7. First 8 multiplied by 3 gives me 24, and then 8 multiplied by 7 gives me 56. So that is 24x plus 56. That is factorization. This is factorization. Okay, and this is my expansion, in which there is only algebraic expression is shown, is not multiplication of algebraic expression is shown. Wherever in the terms multiplication of algebraic expression is shown, we call it a factorization. And when no multiplication of algebraic expression is shown, only simple algebraic expression is there in expansion form, we call it expansion form or algebraic expression. In other words, we can say that suppose when you go with the prime factorization, suppose 24, it means you go with the division method, prime factorization method, then you will find that 24 is 2 12 2 into 2 3 times 8 into 3, then you get the value 2 raised to power 3 into 3. So that is a factor of 24. That is a numerical part. Whatever you done before, like prime factorization of particular number, that is considered as factor. Like multiple of various numbers give you the actual number. So multiple of various number is the factors and actual number is your expansion. Now just multiplication replaces with product of algebraic expression and actual number replaces with your normal algebraic expression. So here, so what we will do, first method is factorization using common factors. If I have to do factorization with common factor, what is common term between all the terms? If you take it out, like here 24x plus 56, I will check only there is no x's there. Okay, so 24 is divisible by 8, then also 56 is divisible by 8. It means common number between 24 and 56 is 8. So we separate 8 from that, take it out common. So what is left inside? 3x plus 7. So that is a factor of this expression. So that is a common factor. इसमें आपको क्या करना है कि सभी एक्सप्रेशन, जितने भी आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपने कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है. कॉमन नंबर में अगर तो आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल की लोएस्ट पावर देखोगे, और अगर आपका न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल के फैक्टर्स आप अलग चेक करोगे और वेरिएबल की पावर आपने अलग चेक करनी है. टू चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल यू हैव चेक फॉर द लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल टर्म. Whatever your terms is there in algebraic expression, that you check what is the common number between that. Like I have a question,
3x square minus 21x cube y. First what I will do, I will open this one. 3x square, x cube when open, I can write x square into x. That is your exponent law. I just open the left side, because in exponent law what you will do, if your base is same, power is added. Now only power addition is given to you, you have to separate with your exponent form. And 21 is also divisible by 3. So we write 21 as 3 into 7. This is x square, this is x, and this is y. So when I check in both the term, what is common? This is 3x square and this is 3x square. I just circle in the both the terms what is common. Okay, so whatever method is given in your book, they said that instead of taking common, if I multiply and divide same term that is common between the terms, like 3x square minus 3x square into 7xy. So this denominator will be divided by all the terms. So 3x square is cancelled, and 3x square cancel. Only here this is cancel and only 1 is left, and this is cancel, only 7xy is left. But instead of doing such a long process, I have do one thing. So what I will do, I will take it outside common. Like I consider this is my whole bracket. Okay, so whatever I circle with the red, so I will take it outside. Okay, so if I take it outside 3x square, if no term is left is here, you can't write it 0. You will write it here 1. If whole term, whatever whole term you are going to take outside, so if no term is left it here, so it is understood that there is 1 is left. From here, if I take 3x square common outside like this, 1 is left it here. And if I take 3x square, skip from here, so only 7xy will be left. So that I write this way. So that is easiest. Instead of writing numerator denominator same term, numerator keep it outside, and denominator you have to divide by all the terms. You will get the same answer, but instead of such long process, you can easily take outside the common term and put all other terms in the bracket. Just miss that term what is inside the bracket. Easiest way is there कि आपके पास जो भी कॉमन टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे. अगर तो मेरी पूरी टर्म कॉमन वाली टर्म आ रही है तो उसकी जगह पे मैं ब्रैकेट के अंदर 1 लिखूंगी. यहाँ पे आ जाएगा -7xy, क्योंकि 3x स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा देना है. जो भी कॉमन टर्म्स होगी वो आपने हटा के बाहर लिख देनी है, और बाकी टर्म जो रह जाएगी वो आपने अंदर लिखनी है. अब जैसे यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8a square b plus 24abc square minus 40ac square. First what I will do, I will open all the terms. Like here 8a square b, 8a into a into b, 24 also, because if I check with all the term numerical term, first I will check with the numerical term. सबसे पहले आपने numerical term चेक करनी है कि numerical term का common table कौन सा है. न्यूमेरिकल टर्म का कॉमन टेबल 8 है कि 24 भी 8 से डिविजिबल है, 40 भी 8 से डिविजिबल है. तो ये जो आपको 24 है, आई कैन राइट ऑल्सो 8 इंटू 3, बिकॉज 8 3s आर 24. तो ये आपका आ गया 8a इंटू ए बी प्लस 8 इंटू 3 24 ए बी इंटू सी स्क्वायर. क्योंकि सी स्क्वायर यहाँ पे नहीं था तो सी स्क्वायर को ओपन करो चाहे ना करो, दैट डजेंट मैटर. मेन होता है कि जो आपके वेरिएबल सभी टर्म में प्रेजेंट होते हैं, इट्स बेटर यू विल ओपन ऑल दैट वेरिएबल्स. हियर ऑल्सो 40 इज 8 इंटू 5 इंटू ए इंटू सी स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट आई विल सर्कल्स व्हाट इज कॉमन टर्म बिटवीन दैट. हियर इज 8a, 8a and 8a. In all these three terms 8 is common. So what I will do, instead of writing this numerator denominator, so denominator divide by all the terms, I get the same answer. So instead of these two steps, what I do, यहाँ पे मैं 8a को भूल जाऊँगी लिखना. I will just skip this 8a. So what is left,
जो मैंने सर्कल टर्म की है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, तो जो सर्कल नहीं की हुई वो टर्म लिखनी है। जैसे जहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पे कौन सी टर्म सर्कल नहीं थी 3bc², और यहाँ पे सर्कल कौन सी टर्म नहीं थी 5c²। बाकी साइन एज इट इज़ रहेंगे और जो मैंने सर्कल की थी टर्म उसको ब्रैकेट के बाहर शो ऑफ कर देंगे। सो दैट इज ईजिएस्ट वेज टू डू इंस्टेड ऑफ डूइंग सच अ लॉन्ग प्रोसेस। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई बड़ी क्वेश्चन दी हो उसको कैसे करना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया -18a² p7 + 12a³ p5 -9p10, so I have 3 terms. I told you when you are going to compare or you find the common term between all the terms, if variable is there you have to check for the lowest power, and for the numerical terms you have to check the common divisible table. First is 18, 12 and 9. If I check all the 3 terms, common table is 3, because 9 is also divisible by 3, 12 is also divisible by 3 and 18 is also divisible by 3. Okay, so that is, ये तो आपका हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। अब आ गया आपका वेरिएबल पार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है a²। a² की a की लोएस्ट टर्म क्या है 2, यहाँ पे तो अवेलेबल है, यहाँ पे भी a² हो जाएगा क्योंकि हायर टर्म से लोअर टर्म निकालना इजी है। पर यहाँ पे a² नहीं है, a की कोई भी वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे a को कॉमन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हम p चेक करेंगे। p7 है, p5 है, p10 है, तो p की लोएस्ट पावर कौन सी है 5। तो हम चेक करेंगे कि क्या p5 सारी टर्म्स के बीच में आता है। यस, p यहाँ पर भी आ रहा है, p5 यहाँ पर तो है ही है, और p10 अगर आप 5 + 5 करोगे तो p5 भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट ईजिली हो सकता है। तो पहले तो आपने इसको ओपन कर लेना है। 18 को ओपन किया 3 × 6 a² p7, 12 को ओपन किया 3 × 4 a³ p5, और 10 को जो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉ है, जो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हम उसको ऑपोजिट वे से ले लेंगे p5 × p5, बिकॉज मुझे p5 कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे 7 को मैं 5 + 2 लिख सकती हूँ। 6a से को सेपरेट कर दिया क्योंकि ये मेरा 6a² सभी टर्म में कॉमन नहीं है। 3p5 4a3, देन 3 3s are 9 p5 3p, नेक्स्ट इज p5। नाउ अब मुझे जितनी तीनों टर्म है मुझे पहले 3.5 को सेपरेट करके सर्कल कर देना कि जो मुझे कॉमन निकालना है। -3p5 p², बिकॉज इफ पावर इज एडेड आई कैन सेपरेट द टर्म विद द सेम बेस 6a² + 3p5 4a³ -3p5 × 3p5। अब 3p5 और 3p5 और 3p5 मैंने सर्कल कर दी, बट वन थिंग, फर्स्ट टर्म कभी भी मेरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मुझे 3p5 के साथ मुझे -3p5 ही कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे -3p5 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया, जो मेरी सर्कल टर्म नहीं है उसको आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे 6a² p², यहाँ पे रह गया 4a³ और यहाँ पे रह गया आपका 3p5, क्योंकि 3p5 पर अगर मुझे नेगेटिव भी कॉमन लेना, तो अगर ये नेगेटिव कॉमन बाहर निकला तो जो अंदर साइन होंगे ब्रैकेट के अंदर वो चेंज हो जाएंगे। ये वाला तो आपका ये नेगेटिव तो बाहर चला गया तो ऑटोमेटिकली ये टर्म पॉजिटिव फॉर्म में आ गई, ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव बन गई और जो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जनरली क्या होता है जब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है, जब आप उसको ओपन करते हो तो नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। बट अगर मुझे नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़े बाहर, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा, हमें अगेन ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करके बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर तो मैं इस मेथड से करूँगी -3p5, तो मेरा ये वाला साइन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव आ जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया आउटसाइड 3p5 के साथ।
पर अगर मुझे -3p5 के साथ ही सारी टर्म्स को डिवाइड करना है, जो कॉमन टर्म को हटाना है, तो अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं ये पूरी टर्म को न्यूमरेटर कंसिडर करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगी तो -3p5 -3p5 -3p5, ये 3p5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3p5 भी कैंसिल होगा, ये 3p5 भी, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. You can also do this way. Next is one more question. अगर 3a x square plus 3y minus 12a square x square plus 3y whole square plus 18a cube x square plus 3y. If you look at this, in all the terms bracket part is common. Here is a power 1, here is a power 2, here is a power 1. So we will look at the power 1 because power 1 x square plus 3y is common between that. First what you will do, you will open all the factors. Like 3a, do not need to open the bracket, just bracket keep as it is. Like just in the form of factors form. 3a x square plus 3y minus 3 into 4 because 3, 12, 18 तीनों ही 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं. तो यहाँ पे 12 को 3 की फॉर्म में लिखा, 3 इंटू 4, ए स्क्र को ए इंटू ए, एक्स स्क्र प्लस 3y एक्स स्क्र प्लस 3y. नाउ 18 को ओपन किया, 3 इंटू 6, ए क्यूब था, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्र प्लस 3y. अब यहाँ पे देखो सर्कल क्या किया, 3a एक्स स्क्र प्लस 3y, 3a एक्स स्क्र प्लस 3y और 3a एक्स स्क्र प्लस 3y, 3a एक्स स्क्र प्लस 3y. जो तो मैंने इस टर्म सर्कल की है उसको तो मैंने लिखना ही नहीं ब्रैकेट में. ओके, तो अगर मेरी ये सारी की सारी टर्म सर्कल फॉर्म में है तो इसकी जगह में मैं क्या लिखूँगी, 1. ओके, अगर यहाँ पे भी मैं 3a एक्स स्क्र प्लस 3y को छोड़ दूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाता है, 4a एक्स स्क्र प्लस 3y. अगर यहाँ पे भी मैं 3a एक्स स्क्र प्लस 3y को छोड़ दूँ तो क्या बच जाता है, 6a स्क्र. और जो मैंने सर्कल की थी उसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख सकती हूँ, 3a एक्स स्क्र प्लस 3y. एक तो ये ईजीएस्ट मेथड है कि पहले सर्कल कर लो, जो आपके पास कॉमन है उस सर्कल को उस टर्म में लिखना ही नहीं है. ओके, अगर तो आपकी सारी टर्म आ रही है तो उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर 0 नहीं लिख सकते, 0 का मतलब है कि वो टर्म 0 बन गया, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा. ओके, दूसरा भी ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो आपने टर्म रिमूव करनी है इन साइड से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर वाली टर्म सबके साथ डिवाइड हो जाएगी, तब भी आपके पास ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा. यहाँ पे 4a एक्स स्क्र प्लस 3y और 6a स्क्र आ जाएगा. नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स. ग्रुपिंग द टर्म मतलब आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म दी होंगी, तो आपने सबसे पहले ग्रुप्स बनाने हैं. ग्रुप्स इस तरह से बनाने कि उनमें से जो कॉमन टर्म है देख लेना कि इनमें से कॉमन टर्म कौन सी है. अगर उनमें कोई कॉमन टर्म आती है तो उसके अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स बना लिए. जैसे है px माइनस क्यू एक्स प्लस ए पी माइनस ए क्यू. ओके, तो इसमें देखो x कॉमन है फर्स्ट दोनों टर्म में और लास्ट वाली दोनों टर्म में a कॉमन है, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लेके उसको ग्रुपिंग में चेंज कर दिया. अब इसमें से x कॉमन निकाल लिया, इसमें से a जो कॉमन टर्म है फिर हम उसको कॉमन निकालेंगे. फिर हमने फिर से चेक किया, इज देयर एनी टर्म फर्दर इज कॉमन देयर, यस, p माइनस क्यू. अब p माइनस क्यू का पूरा फैक्टर आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस ए और p माइनस क्यू जो आपने बाहर निकाला था. इस तरह से इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स. नेक्स्ट, अगर आपके पास टर्म आ जाए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 3x माइनस 27, अगर आपके पास ये वाली टर्म है तो आपने यहाँ पे देखना एक्स स्क्र इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्र इसमें भी आ रहा है, तो ये टर्म का ग्रुप बन गया. इसमें 3 कॉमन है इन दोनों टर्म में, तो वो भी एक ग्रुपिंग में आ गया. तो यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लिया तो x माइनस 9 रह गया, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 9 रह गया. अब देखो दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, तो x माइनस 9 को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्र और यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, 3. कि जो हमने कॉमन सर्कल करके निकाली है उसको नहीं लिखना, जो आपने सर्कल नहीं की थी उसको आपने फर्दर
ब्रैकेट के अंदर लिख लेना और जो आपने सर्कल की थी उसको बाहर लिख देना ब्रैकेट के, x माइनस 9। अब अगर आपकी टर्म इस तरह से आ जाए 1 माइनस बी स्क्वायर सी आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस सी स्क्वायर माइनस 1b। अब इसमें से कोई भी टर्म आपको कॉमन अभी दिख नहीं रही। फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द ब्रैकेट विथ मल्टीप्लाई, like c multiply with 1 minus b square, c first multiply with 1, then next multiply by b square, so that is c minus b square c, then minus b multiply with c square, that give me minus c square b, then minus into minus b give me plus b. Now you can check is there anything is common. So if you just look at this term, in both term bc is common and here b plus c, so we keep it separate b plus c and minus b square c minus c square b. अब इसमें से देखो माइनस बी सी और माइनस बी सी लोएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स आपने कॉमन निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे एक बी और सी बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ बी रह गया, यहाँ से एक बी और एक सी बाहर गया क्योंकि सी स्क्वायर था और यहाँ पे सिर्फ बी प्लस सी रह गया। अब दोनों में चेक करो बी प्लस सी एंड बी प्लस सी कॉमन है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा माइनस बी सी, और ये b प्लस सी और ये b प्लस सी जब आपने कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस बी सी, जो आपका सेकेंड फैक्टर रह गया कि जो सर्कल किया उसको बाहर निकालना है। थर्ड आपका है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, जो आपकी आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट कुछ हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि आपको राइट हैंड साइड की फॉर्म दी हुई थी, आपने उसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी हैव टू अप्लाई सेम थिंग हेयर। If I have a question like 25x square plus 10xy plus y square, so if I look at this, this is the square of 5x whole square and this is the square of y square, and if I take two separate from that 2 into 5x plus y, so if I compare with this term, अगर आप इस वाली पूरी टर्म को कंपेयर करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपकी a स्क्वायर की टर्म आ गई प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जो आपका फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर ये आ गया 5x प्लस वाई होल स्क्वायर, सो दैट इज़ 5x प्लस वाई एंड 5x प्लस वाई। तो आप इसको 2 टाइम्स अगर पावर है तो इसको इस तरह से फैक्टर्स में ओपन कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका 81p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 6q माइनस 9। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस टर्म, nothing is common between that in these terms, so what you will do, we check the term. Here 81p square is the square of 9p whole square, so first we write this way. Now here all the term is q and one constant term, so what I will do, I take first negative sign common and in the bracket I keep 3 terms। इन तीनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और नेगेटिव क्या चेंज हुआ आपका पॉजिटिव, क्यू स्क्वायर माइनस 6q प्लस 9। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, वी कॉल इट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, वन थिंग यू रिमेंबर, जब आप a और b मल्टीप्लाई होता था होल स्क्वायर लिखते थे तो इसका मतलब था a स्क्वायर और b स्क्वायर सेपरेटली स्क्वायर होता था अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, बट यहाँ पे आपने प्लस माइनस पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर को कभी भी हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखते। ओके, वो सिर्फ अगर पॉजिटिव नेगेटिव की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो तभी हम a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं, अदरवाइज जब भी आपका a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म होगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी यहाँ पे 81p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 6q माइनस 9, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 81p स्क्वायर को चेक किया, ये है 9p होल स्क्वायर, 9p का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे इन तीनों टर्म से जब आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया q स्क्वायर माइनस 6q
प्लस 9, क्योंकि जब भी हम कोई भी टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो उन तीनों टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, जो कि ऑपोजिट इसके है कि जब आप एक ब्रैकेट को ओपन करते हो बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप किसी टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन बाहर निकालते हो तब भी उसके साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो क्यू स्क्वायर, अब इसको क्यू स्क्वायर माइनस 6q प्लस 9, ओके, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। अब इसमें से 2 सेपरेट किया, q3, तो ये q तो आपकी फर्स्ट टर्म है, 3 आपकी सेकेंड टर्म है। क्यू स्क्वायर माइनस 2q इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि a की जगह पे क्या है q, b की जगह पे 3। तो जो आपका ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा 9p होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये वाली पूरी टर्म स्क्वायर के अंडर है, माइनस q माइनस 3 स्क्वायर है। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 9p, बी की जगह पे q माइनस 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने जहाँ जहाँ भी ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या था 9p, बी की जगह पे q माइनस 3, पहले तो मुझे लिखना है ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। तो 9p माइनस क्यू माइनस 3, 9p प्लस क्यू माइनस 3, तो ये तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका 9p प्लस क्यू माइनस 3 बन जाएगा, पर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो वो आ जाएगा 9p माइनस क्यू प्लस 3, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।